In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Well, students, I'm your teacher of subject English. So let's start today's lecture. Let me tell you about the date. Today is 30th of November 2020 and the day is Monday. Okay? Let's move ahead to see the topic of today's lecture. And the topic of today's lecture is essay writing. It means that essay writing, we are going to learn about how to write an essay, which will help you to create the sentences by your own when you will let know about the steps of the essay writing, which I'm going to tell you in this lecture. Okay, so you have to watch the video till it end. Okay, what is an essay? सबसे पहले तो तब द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अबाउट essay is that what is an essay? कि essay क्या है? ऐसे कोई if we translate in Urdu so it would be मजमून, कि ये मजमून है, but basically it comprises on the creative writing, it comprises on the creativity of your mind, कि आप कितना सोचते हो, how you are going to create the sentences by your own. It's all depend on your mind. So essay basically क्या है? A short piece of writing on a particular subject is called an essay. यानी कि एक छोटा सा piece of writing आप किसी भी particular means कोई स्पेशल सब्जेक्ट है, ठीक है, इज़ कॉल्ड एन essay, वो essay कहलाता है. यानी कि एक छोटा सा piece of writing है. It means that you are in 2 class, you are in junior level. So it might possible that sometimes you are bound to write only 10 lines, but sometimes you write more than 10 lines because you are able to create the sentences more and more by choosing the particular topic. Okay, well students, there are some steps to follow. Means I'm going to tell you about the steps to write an essay which is going to help you to create the sentences by choosing the topic. First of all, topic title. Choose and think about it. यानी कि सबसे पहले आपको you have to choose one topic. Like if I give you multiple topics to choose, so it's all depend on you because there are a lot of topics. Like sometimes teacher can give you different topics like write some lines on the pencil, on your pen, my school, my mother, my house, garden, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो आपको सबसे पहले टॉपिक चूज़ करना है. when you will choose the topic, then you have to start think about the topic. Okay, then you will be able to create the sentences by your own. Alright, the next step is points यानी कि आपने उस टॉपिक को लेके what kind of points you are creating, कौन से आप पॉइंट्स डेवलप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है. यू हैव टू कम अप विद पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू इंक्लूड इन योर essay. आपको ऐसे पॉइंट्स क्रिएट करने हैं जो आप अपने essay में इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है. थर्ड वन इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन्स समटाइम्स हमारे पे वी डोंट हैव मच वोकेबलरी, वी डोंट हैव मच डाटा, वी डोंट हैव मच, यानी कि इसके लिए हमारे पे इतनी बुक्स नहीं होती. सो वी हैव टू सर्च इट फ्रॉम द नेट, फ्रॉम द गूगल, फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्रीज, फ्रॉम बाय रीडिंग द बुक्स एक्सेट्रा. ओके, तो आपने इसके बारे में वी कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, मीडिया एंड पीपल. कि हमें समटाइम्स वी आर गिवन द सच टॉपिक विच इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर अस. तो उस टॉपिक को लेकर हम हर जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं. आउटलाइन. व्हेन यू गेट एन आइडिया, यानी कि जो आपने आइडिया ले लिया लोगों से, मीडिया से, गूगल से, फ्रॉम बुक्स, ठीक है. व्हेन यू गेट एन आइडिया और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, देन द गिवन पॉइंट्स कैन हेल्प यू टू ड्राफ्ट एन आउटलाइन ऑफ योर ऐसे. अब जो आप पॉइंट्स बना लिए ना, उसको जैसे वर्ड बैंक दिया होता है, ठीक है. आपकी बुक में भी अगर इफ़ यू सी ऑन योर बुक, सो समटाइम वी आर गिवन विद द वर्ड बैंक.
विद द गिवन ऑफ द वर्ड बैंक वी आर एबल टू राइट द सेंटेंसेस बाय आवर ओन. ठीक है, तो वो हेल्प करेगा आपकी आउटलाइन क्रिएट करने में. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड द फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे. जब आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर गए, व्हेन यू हैव फॉलोड ऑल ऑफ द स्टेप्स, then we come up with the last point, which is structure of an essay. As you know, the essay begins with the topic title. ठीक है, then we divide it into 3 parts. उसके बाद हम इसको 3 parts में divide कर देंगे. Number 1 is the introduction, number 2 is the body parts, number 3 is the conclusion. In the introduction must be comprises or must be based on the topic कि क्या आप लिखने जा रहे हो. And then body parts is basically the brainstorm. क्या आपने क्या क्या चीज़ें आइडिया लिए हैं, क्या क्या आपने इंफॉर्मेशन ली है. conclusion finally आप उसको क्लोज कर दोगे. you will close the essay by the with the help of the ending lines, और conclude कर दोगे. ठीक है, so you can see here the page number is 4, which is given on your grammar book, and the topic is my house. So you can see that there are 2 pictures, one of the house and the next picture. ये जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें एक फैमिली है. ऑफ कोर्स वी ऑल हैव हाउस एंड वी ऑल हैव फैमिलीज. हम सब की फैमिलीज होती हैं. वी ऑल आर लिविंग इन द हाउस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 लाइन, अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव. एक जो घर है, एक ऐसी जगह है जहाँ हम रहते हैं. माई हाउस इज़ वेरी बिग. अब देखें आपके सामने, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हाउस इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हाउस कि हाउस क्या है. व्हाट इज़ एन हाउस. हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी ऑल लिव. ठीक है, हाउस बड़ा, सम ऑफ अस आर लिविंग इन द स्मॉल हाउस, सम ऑफ अस आर लिविंग इन द बिग हाउस. कुछ लोग का घर जो होता है वो बड़ा ब्यूटीफुल है, और सम से डैट कि कुछ जो बच्चे होते हैं ना वो अपने रूम को टाइडी नहीं करते. ठीक है, तो वो सारी बातें आपके माइंड में आ जाएंगी कि मेरा रूम तो बहुत टाइडी अप होता है. आई ऑलवेज टाइडी अप माई रूम. आई डोंट मेक मैस इन माई रूम. ठीक है, एक्सेट्रा. A house is a place where we live. A house is very big. My house is very big. मेरा घर बहुत बड़ा है. I live in my house with my family. मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, यानी कि पेरेंट्स. My house has bedrooms. Of course, everyone has the bedrooms. Bathrooms भी सबके पास होते हैं. Kitchen and dining room. ठीक है. There is a big market near my house. अब देखें, I'm so sorry, कि मेरे घर के पास एक बहुत बड़ी मार्केट है. द बेस्ट प्लेस इन माई हाउस इज़ माई गार्डन. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव द गार्डन नियर द हाउस और इन द हाउस. ठीक है, कुछ लोगों के घर के पास दूर करके गार्डन होगा, कुछ लोगों के घर में ही गार्डन होते हैं. तो वो चीज़ें आपने लिखनी है. द बेस्ट प्लेस इन माई हाउस इज़ माई गार्डन. वो कह रहे हैं कि मुझे जो अपने घर में सबसे अच्छी जगह पसंद है वो मेरा गार्डन है. ओके, Number 7 line, if you see here, I have planted many flowers in it. मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट किए हुए हैं. ये बेस्ट जगह मेरी क्या है, गार्डन है. मैंने उधर बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट किए हुए हैं. माई हाउस इज़ एरी. मेरा जो घर है वो बहुत हवादार है. देर आर मैनी ट्रीज़ अराउंड माई हाउस. मेरे घर के इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त हैं. आई लाइक माई हाउस वेरी मच. मुझे अपना घर बहुत पसंद है. अब देखें, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट योर रूम, तो आपने उसमें अपने रूम के बारे में लाइन्स लिखनी है. ठीक है, कि माई रूम इज़ वेरी क्लीन. माई रूम इज़ पेंटेड विद द पिंक कलर. आई हैव अ बारबी डॉल बेड इन माई रूम, और स्पाइडरमैन शेप्ड बेड इन माई रूम. ठीक है, यानी कि आपने यू हैव टू डिस्क्राइब योर रूम. जो आपकी खूबसूरत और जो आपको पसंदीदा चीज़ है ना घर की, वो आपने डिस्क्राइब करनी है. इट माइट बी किचन, इट माइट बी डाइनिंग रूम, इट माइट बी सिटिंग रूम, or study room, praying room as well. Okay, so the students homework is learn the essay which is given on the page 7 of your grammar book, and then you have to write on your notebooks. अपनी notebooks के ऊपर इसको kindly लिख लीजिएगा, और make sure that you are learning the essay, or even it's all depend on your creativity. You are creating the sentences by your own. Okay, take care of yourself. Enjoy. Allah Hafiz.